धार्मिक युद्ध are the times for which a Kshatriya mother gives birth to sons. This is the time for them to live up to it. Coming back to the Agni Pariksha of Ma Sita, what does that exactly represent? अगर मैं ये कहूँ कि तब की सारी स्त्रियां सशक्त थी, एम्पावर्ड थी सो टू से, और कोई कहे अच्छा नहीं वो तो थोड़ी ना काम करती थी, वो थोड़ी ना जाके युद्ध लड़ती थी, दिस इज नॉट अ गुड कंपैरिजन. So why have women been so misunderstood in today's world? You know, the women in ancient India. वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास जी की महाभारत तो हार्डली कोई पढ़ता है. द आइडिया वी हैव इज बेस्ड ऑन रीटेलिंग्स or even fiction writing that has happened later on in the last 500-600 years and even more now. You know, it's not just Sita ji ने क्या नहीं किया और राम जी ने क्या किया. There's so many misconceptions that people have. Do you think that this entire colonial or pop culture interpretation has affected how we view characters like Sita ji? Absolute 100% 110% बकवास. ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है. शकुनी also probably is not as scheming as they make him out to be. He is not even लंगड़ा. कैकेयी ने जो किया वो कोई श्री राम रावण को मारे इसलिए नहीं किया था. The fact that Kaikeyi could change the direction of Ayodhya, is that a abala nari? Not at all. The fact that Shurpanakha incited her brother to destroy himself using whatever way she did, is that an abala nari? But it's also today's date. It's easier to spread misinformation also. Yes. No? Posts I've seen जहाँ बोलते हैं कि ओ श्री राम was the original misogynist. See, whole Mahabharata Ramayana, they are men only. अगेन रामायण में ना बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन भी है. जो राक्षस थे दे वर नॉट वेरी हाई इन द हायरार्की. स्टिल यू नो रावण वाज अ सीरियल रेपिस्ट. So it is not about saying कैकेयी अच्छी है या दशरथ बुरे हैं, ऐसे कुछ. तो the point is when anybody behaves that way, fall is निश्चित. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट पे, हमारे ऑफ द ऑडकास्ट शो पे. आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनीत अग्रवाल जी और अमी गनात्रा जी. बोथ आर हिंदू स्कॉलर्स, बोथ हैव कम फ्रॉम बॉम्बे एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली मीटिंग ईच अदर and also coming on a podcast together. So this is a very exciting time for the father and son podcast. The podcast was started by my son and it is basically to try and talk about any topic that's odd but relevant. And today's topic is very odd but very relevant also because we're discussing about women in our itihasa, like our epics like Ramayana and Mahabharata, and why they have been often misunderstood in today's world. So namaskar ji, Dr. Vineet ji, Ami Ganatra ji, namaste. How are you all? कैसे लग रहा है आप लोग को यहाँ आके? All good, we are good. हाँ. We had a good journey. Feels like home? Yes, yes, of course. आपके यहाँ पे आना is always it's always like coming home. थैंक यू सो मच. ये तो हमारा सौभाग्य है. बट लेट मी स्टार्ट. आपसे पहले पूछूंगा मैं आप दोनों से, एंड फील फ्री टू जंप इन एनी टाइम विद एनी एडिशनल पॉइंट्स, यू नो, बोथ ऑफ यू. So why have women been so misunderstood in today's world? You know, the women in ancient India, you know, why so much of, you know, confusion on them, on their roles in society, in their dharma, etc. क्या हो रहा है ये? I'm going to ask you back, just for the sake of clarity and for your audience. आप जब कहते हैं कि there is confusion, what kinds? आप example दीजिए तो मेरे ख्याल से और अच्छे से हो पाएगा. एक simple example is like Ma Sita. Hmm. You know, she has always been shown as a very submissive and a very, you know, soft lady. कि you know वो जो भी पति बोल रहा है वो, you know, मान रही है. You know, अंधाधुन she's following him into the forest. Then she gets abducted. She's waiting there. When she comes back also, you know, people say कि, you know, Shri Ram, you know, made her do so many tests. अग्नि परीक्षा करा ली, वो कर भी लिया उन्होंने. तो why is she so submissive? You know, that is अच्छा. one example that I can give you. So why, what is, you know, Okay. what is the truth here? So I'll share my view on this. Sure. See, हुआ कैसा है ना, over time, if you look at महाभारत रामायण, जिसे हम इतिहास कहते हैं, they are very old. Depending on whatever time frame you see, कंजर्वेटिव लो तो भी 2500 साल से 5000, 7000, 8000 साल रामायण महाभारत दोनों की बात कर रही हूँ. एंड वी ऑलवेज हैड अ ओरल ट्रेडिशन. तो मौखिक होता था, उसी प्रकार ट्रेडिशन बढ़ते जाता था. इतिहास हम किसे कहते हैं? वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास जी की महाभारत को. परंतु हमारे यहाँ हमेशा से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहा है, तो लोगों ने अपनी अपनी कहानियां रची यूजिंग महाभारत रामायण एज द बेस. आज क्या हो गया है दैट
महाभारत रामायण तो हार्डली कोई, वाल्मीकि रामायण और वेदव्यास जी के महाभारत तो हार्डली कोई पढ़ता है. द आइडिया वी हैव इज बेस्ड ऑन रीटेलिंग्स or even fiction writing that has happened later on in the last 500-600 years and even more now. अच्छा, अभी क्या हो गया है, लोग कहते हैं मैंने सीता जी के पर्सपेक्टिव से लिखा, ठीक है, पर सीता जी का पर्सपेक्टिव मतलब क्या? शी नेवर केम एंड टोल्ड दैट पर्सपेक्टिव, राइट? इट इज द राइटर्स पर्सपेक्टिव. राइटर का पर्सपेक्टिव किस पे बेस्ड है? जो वो करंटली देखते हैं एंड दे प्रोजेक्टेड टू द पास्ट, राइट? तो जिन्होंने भी रिटेलिंग करी है उन्होंने अपने समय अनुसार करी है, और उन्होंने सीता जी को, द्रौपदी को, जो भी आप कैरेक्टर कह लो, उसके अनुसार, तब के मॉरल स्टैंडर्ड्स के अनुसार देखा है, राइट? आज हम उसी को ओरिजिनल समझ बैठे हैं. तो क्योंकि हम हमारा इतिहास के रूप में ओरिजिनल नहीं पढ़ते, इसलिए ये सारे जो प्रश्न हैं ये आते जाते हैं. पर अगर आप वो देखो, ठीक है, अच्छा एक बात मैं और कहूंगी, अगर मैं ये कहूँ कि तब की सारी स्त्रियां सशक्त थी, एम्पावर्ड थी, सो टू से, और कोई कहे अच्छा नहीं वो तो थोड़ी ना काम करती थी, वो थोड़ी ना जाके युद्ध लड़ती थी, दिस इज नॉट अ गुड कंपैरिजन, ठीक है, बिकॉज उस समय की स्थिति कैसी थी, हाउ वर द रोल्स बीइंग प्लेड आउट, टेक्नोलॉजी कैसी थी, उसके अनुसार योर रोल्स डिपेंड. एम्पावरमेंट क्या होता है? डिड दे हैव एजेंसी? डिड दे हैव द राइट टू टेक देयर ओन डिसीजंस? डिड दे हैव अ वॉइस? तो वो तो उन सब में रहा है. ओवर टाइम समाज में जो भी बदलाव आया, जो भी कोई कारण, वो खराब होते क्या तो नहीं कहूंगी, वो बदलता गया, राइट? और आज हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इतिहास को नहीं देखते, उसके बाद के जो रिटेलिंग्स है, जो फिक्शन है, उसके बेसिस पर हम उनकी परिकल्पना करते हैं. परफेक्टली समराइज आई थिंक अमी जी. और आपका क्वेश्चन भी बहुत रेलेवेंट था टू ओपन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, बिकॉज जैसा अमी जी ने भी बोला, हम लोग 21st सेंचुरी ग्लासेस लगा के ना जो 5000 साल पुराने स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, एंड वी फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीथिंग. इट्स नॉट जस्ट सीता जी ने क्या नहीं किया और राम जी ने क्या किया. There's so many misconceptions that people have, primarily because as she said, लोगों को ओरिजिनल स्क्रिप्चर के बारे में ज्ञान ही नहीं है. और इट इज़ अनफॉर्चुनेट क्योंकि आज सब चीज़ें अवेलेबल है. It's very easy to find what is correct, what is not, what is hyperbole, and what has been exaggerated, what has been omitted, or what has been added to the original text. बहुत simple है अब पता करना. It's not difficult at all. But उससे ज़्यादा simple क्या है? Ignore करना उस चीज़ को. So, we don't want to put effort, we don't want to read, and that is why these misconceptions are continuing. अगर आप एक्चुअली स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, सीता जी के ही डिसीजंस थे सारे. जैसे आपने जो भी चीजें बोली है, उसमें से हर डिसीजन सीता जी का था. जंगल में जाना उनका खुद का डिसीजन था. राम जी ने उन्हें क्लियरली बोला था कि ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है, ये जो वचन है कैकेयी का, वो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, लक्ष्मण के लिए नहीं है. बोथ ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर राम, दे कन्विंस्ड हिम टू टेक देम अलोंग. सीता जी का खुद का डिसीजन था जाना. अग्नि परीक्षा, अगेन इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना देते हैं. सीता जी, I don't know if you want to elaborate on it later, but सीता जी आज्ञा देती हैं लक्ष्मण को वहां पे एक चिता जलाने के लिए. राम जी नहीं बोलते हैं, सीता जी बोलती हैं कि यहाँ चिता जलाओ और मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी. सो इतनी सारी जो मिसकंसेप्शंस है वो इसीलिए है, आई थिंक, क्योंकि जानकारी नहीं है लोगों को. बट इट्स ऑल्सो today's date it's easier to spread misinformation also. Yes, जैसे मतलब I have seen so many reels and where there are so many posts I've seen जहाँ बोलते हैं कि ओ श्री राम was the original misogynist. Yeah. That's how they portray him. Yes. Because he put his wife through so many, मतलब इतनी सारे Yes. तकलीफों में डाल दिया, जंगल ले गए वगैरह वगैरह. But I want to come to my next question, जो आपने कैकेयी जी का नाम लिया. So a lot of people label her as the original problem in the entire thing. So what's the truth here? कि again it's another misconception. Is it a misconception? I'll let you go, then I'll say. Okay. नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए जो पूरी स्टोरी है ना, उसमें there are a lot of people involved, lot of catalysts. I would say you can't say that she was the only problem or the only issue. Yes, उन्होंने एक ऐसा वचन मांगा जो, she was justified to ask. अगर आप उनका पर्सपेक्टिव देखिए, अब हम सबका पर्सपेक्टिव देख रहे हैं तो कैकेयी का भी देख लेते हैं. तो उनका पर्सपेक्टिव क्या है? शी इज डूइंग इट फॉर हर सन. वो अपने लिए ठीक है, उनको थोड़ी अपने लिए भी इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं अभी तक मैं पटरानी की तरह रही हूँ,
बिकॉज शी वॉज फेवरेट फॉर Correct. दशरथ, और राम के राजा बनने के बाद शायद मेरा जो स्टैचर है वो कम हो जाएगा. अगेन मंथरा ने जो भी उन्हें बहलाया फुसलाया जैसा बोलते हैं, बट शी वॉज प्राइमरली डूइंग इट फॉर हर चाइल्ड. सो पर्सपेक्टिव्स अगर हम देखने जाएंगे, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं, छोटी 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 छोटी. अब अगर विश्वामित्र जी, जैसे हम आते हुए अभी रास्ते में बात कर रहे थे, मैंने पहली अपनी बुक विश्वामित्र जी पे क्यों लिखी, बिकॉज आई थॉट ही वॉज वन ऑफ द मेन कैटलिस्ट फॉर रामायण. अगर वो राम और लक्ष्मण को लेके ही नहीं जाते जंगल में, और फिर वहां से मिथिला नहीं लेके जाते, राम जी और सीता जी मिलते ही नहीं, तो उनकी शादी ही नहीं होती, उनका बाद में जो कुछ हुआ वो नहीं होता. सीता जी आप बोल सकते हैं अगर वो डिसाइड नहीं करती जाने का फॉरेस्ट में, सिर्फ राम जी जाते तो उनका अबडक्शन ही नहीं होता वहां से. सो कैकेयी अगर नहीं बोलती दशरथ को अपना वचन पूरा करने के लिए, तो राम जी नहीं जाते. सो ऐसे आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स थे. इट वाज नॉट जस्ट वन, एंड वी आई पर्सनली फील कि सिर्फ एक उसको कैकेयी को ब्लेम करना इज इजी, बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट वर एट प्ले. Yeah, because सारे फसाद की जड़, they say it like that, कि वो ही थी. मंथरा भी. So Correct. I have a very brutal take on this. Sure. Okay. It was not just Kaikeyi, but it was Kaikeyi and Dashrath. Because the way I like to see the epics is Really? very clear. कि भाई हम उससे क्या सीख रहे हैं. ठीक है. हाँ, ये सब अगर कैकेयी ने ये नहीं मांगा होता या मंथरा ने नहीं कहा होता तो रामायण नहीं होती, वो एक बात है, राइट. पर कैकेयी ने जो किया वो कोई श्री राम रावण को मारे इसलिए नहीं किया था, ठीक है, ये Correct. सोच के नहीं किया था. सो आई विल नॉट गिव हर दैट बेनिफिट ऑफ डाउट कि अरे भाई कितनी महान. आई वोंट से दैट. हाउ डिड द होल थिंग प्ले आउट. एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब हम महाभारत और रामायण पढ़ते हैं तो हमें जजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे सीखने की आवश्यकता है. कैकेयी ने जो किया वो क्यों किया. एक जो उन्होंने कहा कि अपने बेटे के लिए, परंतु जब आप पूरा एपिसोड पढ़ोगे ना, बेटे के लिए तो किया, बट क्या चेंज हुआ. अच्छा, मंथरा क्या है. मंथरा इज हर somebody who is only concerned about कैकेयी. ठीक है, उसके जीवन में और कुछ नहीं है, उसके लिए उसकी रानी एंड दैट्स इट. दैट इज हर रोल, दैट्स इट. तो उसने सोच लिया कि यार मेरी रानी का कम स्टेटस हो जाएगा, तो वो तो जो कह रही थी. पर कैकेयी क्या है. कैकेयी इज नॉट जस्ट एनी वुमन, शी इज अ रानी. बीइंग अ रानी, शी इज ऑल्सो अकाउंटेबल टू द प्रजा, राइट. सो शी इज नॉट जस्ट एनी पर्सन. अच्छा, वो तो मांगती हैं. पहले जब मंथरा ने कहा कि भाई भरत को कुछ नहीं मिलेगा, ये वो, कैकेयी डजंट एग्री. कैकेयी सेज नहीं, आई हैव ट्रस्ट श्री राम में, कुछ नहीं होगा, ये वो. पता है चेंज कब हुआ. चेंज तब हुआ जब मंथरा ने कहा अरे अभी योर हस्बैंड फेवर्स यू, तुम उनकी फेवरेट हो, है ना, तो तुम कैसे बिहेव करती हो तुम्हारी और को वाइफ्स के साथ, है ना. दर्प में बिहेव करती हो, प्राइड से बिहेव करती हो, अहंकार से बिहेव करती हो. अब जब वो बड़ी हो जाएंगी, बिकॉज द सन इज गोइंग टू बी द राजा, तो सोचो वो क्या करेंगी. सी, वी ऑलवेज सी द अदर पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट वी आर, राइट. कौशल्या माँ शायद ऐसा कुछ नहीं करती, बट क्योंकि कैकेयी इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक दैट, शी इज थिंकिंग हाँ मैंने ऐसे बिहेव किया है तो कौशल्या भी यही करेंगी. नाउ यही बात जब दशरथ आते हैं और दशरथ कहते हैं कि अरे क्या हुआ, मुझे बताओ, ये वो तुमको चाहिए वो मैं दूंगा. यू नो व्हाट कैकेयी सेज. कैकेयी सेज मुझे सब मालूम है, आते मेरे पास हो, बट यू ओनली वांट टू हैव फन. रमस, आपको केवल रमण करना है, आपको केवल रमण करना है. किसके साथ. कैकेयी के, कौशल्या के साथ. इसलिए आप ऐसे बात कर रहे हो. एक सेकंड भी, क्षण भर भी मैं ये नहीं देख पाऊंगी कि लोग हाथ जोड़कर कौशल्या को आदर दे. इसलिए होगा तो यही कि राम वनवास में जाएंगे और भरत राजा बनेगा. तो इट इज नॉट जस्ट अपने पुत्र के लिए, इट इज हर ओन ईगो बीइंग शैटर्ड, वेयर शी इज थिंकिंग कि अरे वो उनको ज्यादा भाव मिला तो मेरा क्या होगा, राइट. अच्छा, अब वो तो ये मान रही, वो तो कह रही हैं एज अ वट एवर इनसिक्योरिटी, शी इज सेइंग दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द राजा. Was he only the पति देयर. वचन दिया था, पर वचन तो प्रजा को भी दिया था कि भाई श्री राम को राजा बनाना कोई उनका अकेले का डिसीजन नहीं था. He had asked the entire प्रजा, है ना, सबको, सबने कहा था we want श्री राम. So the commitment was also to the प्रजा. He couldn't have said कि हाँ भाई मैंने तुम्हें वचन दिया है, but don't interfere is my राज्य का कामकाज, मेरा राज्य धर्म में. हाँ, exactly, this is not your domain. You ask anything else beyond that. He could have said that, but he didn't. Why? Because the way he was involved in कैकेयी, he actually says, जो जब मंथरा कह रही है कैकेयी को कि अरे तुम मांग लो जो मांगना है, राजा तुम्हें ना ही नहीं बोल सकते. यही बात फिर जब राजा आते हैं और जब कैकेयी से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, और वो क्रोधागार में, एंड शी डजंट टॉक. यू नो व्हाट द राजा सेज. द ब्यूटी ऑफ महाभारत एंड रामायण इज दीज डायलॉग्स. द राजा सेज
अरे क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ, मुझसे बात करो. शी डजंट टॉक. ही इज गेटिंग इवन मोर एंशियस. ही सेज तुम मुझे क्या बताओ, क्या चाहिए. डू यू वांट अ क्रिमिनल टू बी लेफ्ट? मैं वो कर दूंगा. क्या तुम जो क्रिमिनल नहीं है, जो इनोसेंट है, उसको पनिश कराना चाहती हो? वो भी मैं कर दूंगा. क्या किसी धनी को, किसी रिच पर्सन को तुमको पुअर बना देना है, अधनी बना देना है? वो भी मैं कर दूंगा. किसी गरीब को तुमको पैसे वाला बना देना है? वो भी मैं कर दूंगा. अरे राजा ऐसे बात करता है क्या कि रानी चाहे तो तुम क्रिमिनल को पकड़ लो, कि जो क्रिमिनल नहीं है उसको पकड़ लो, जो रानी चाहे तो तुम जो क्रिमिनल है उसको छोड़ दो. आप देखिए राजा का एटीट्यूड कैसा है उसकी तरफ. सो व्हाट हैज मेड हर सो आउटरेजियसली कॉन्फिडेंट कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ एंड राजा करेंगे. हुज फॉल्ट इज दैट? द वे राजा हैज ट्रीटेड हर एज कंपेयर टू हिज अदर वाइफ्स, राइट? नाउ दिस गेट्स कॉर्पोरेटेड फर्दर. जब श्री राम कौशल्या माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वनवास मिला है, मैं जा रहा हूँ, दैट वुमन ब्रेक्स डाउन. शी सेज आई वाज ओनली लिविंग फॉर यू. मेरी खुशी ही तुम थे, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तो मुझे कैकेयी के दासियों से भी कम भाव दिया है, राइट? सो जो ये जिस प्रकार बात कर रहे हैं दशरथ, क्लियरली ही हैज बिहेव्ड लाइक दिस विद हिज वाइफ. He is biased to the extent कि he can do whatever for Kaikeyi, which made her ask this, right? So did she ask this? Yes, कि हाँ, in that sense, yes. And she was insecure and she was jealous why she asked. But the fact that her whatever she asked could get done is because the way the Raja treated her, which was also unfair. He could have clearly drawn a line. हम boundaries की बात करते हैं ना? What was this? The boundaries were not drawn, and so it happened. So what do we learn from it? This is what we learn कि भाई कोई भी कार्य आप जब करते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य में नहीं करना है. कैकेयी ने क्या किया? And what did she gain? Nothing, right? At the end, nothing. Yeah. सब कुछ छूट गया, बेटा भी छूट गया. Husband also died. मतलब उसने jealousy में और अहंकार में किया जो किया, वो हालत खराब. दशरथ ने क्या किया? काम में the kind of involvement, the lust he had for his wife, उसके कारण ये गड़बड़ हो गई, है ना? So it is not about saying कैकेयी अच्छी है या दशरथ बुरे हैं, ऐसे कुछ तो. The point is when anybody behaves that way, fall is निश्चित. So this is what my take is on No, this. you said that it's a brutal take. This was really brutal. Yeah. Because I never thought of it this way. But this is very good. exactly what Yes. Ramayana says. Yeah. But also I think जो अमी जी आपने जिस तरह describe किया the relationship between Dashrath and Kaikeyi, I think it also lays a foundation in a subtle way of the relationship that will develop between Ram and Sita. Absolutely. Absolutely. आप imagine कीजिए कि राम जी ने देखा है what the partiality or favoritism to the queen by the king Does. can do. And he's corrected that later. So no, he I mean Sort of. who? Ramji? Yeah, Dashrath? at the end. Yeah, of Dashrath, course. So see, what I'm saying is that he might have gone to the other extreme because he had seen Correct. this happening where the worthy candidate who should have become he was the favorite of the Correct. praja, right? तो वो प्रजा के भी favorite थे, राजा की भी choice थे. Everybody wanted him. He was deserving also. He was the most deserving candidate. वो बनना चाहिए थे राजा, पर वो नहीं बने क्यों? Because of this, exactly what she said. जो उनकी ड्यूटी थी वो उन्होंने मोह में आके राजा ने अपनी नहीं निभाई. और ये एक subtle influence मे बी उनके कैरेक्टर में रह गया जो हमें बाद में जाके दिखाई देता है. इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सटल भी नहीं है, एंड आई टेल यू व्हाई. तो बेसिकली इसमें क्या है, जब राजधर्म और पत्नी धर्म को चूज करने का आया, दशरथ ने पत्नी धर्म चूज किया, राइट? द सेम उसका उल्टा श्री राम करते हैं कि नहीं, राजधर्म मैटर्स. बट whatever you said, I'm saying why it is not subtle, because वो लोग जब वनवास में निकल जाते हैं, है ना, वनवास में आ गए हैं, तो पहली रात पहले तो श्रृंगवेरपुर में है, वहां जहां उनके साथ सुमंत्र है, फिर वहां से वो जब आगे आ रहे हैं, एंड द फर्स्ट नाइट जब वो लोग अकेले हैं वत्स देश, आज का जो प्रयागराज वाला एरिया है, वहां के वन में जब अकेले हैं, दैट नाइट सीता जी हैज फॉलन अस्लीप एंड लक्ष्मण और श्री राम बात कर रहे हैं. श्री राम बिकम्स अ लिटिल अपसेट. लक्ष्मण पूछते हैं क्या हुआ. देयर ही एक्चुअली सेज, ही सेज कैकेयी जो है वो डेफिनेटली मेरे पिताजी को नष्ट करने के लिए आई है घर में, बट क्या कर सकते हैं. दिस इज लिटरली व्हाट ही सेज, वो आई है, क्या कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज जब कोई मनुष्य धर्म को भूलकर काम को आगे करता है, काम इज डिजायर, लस्ट, धर्म को भूलकर काम को आगे करता है, उसकी हालत तो यही होती है. दिस इज व्हाट श्री राम सेज. ही सेड अदरवाइज ऐसा कौन सा पिता होगा
जो मेरे जैसे लड़के को, मेरे जैसे ओबीडियंट लड़के को इस प्रकार छोड़ देगा, और या ट्रीट करेगा या ऐसा ये treat- आदेश देगा। हाँ, सो दिस इज व्हाट श्री राम इज सेइंग। हम्म। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। यही जो भाग है ना, ये गीता प्रेस में आता है, दिस इज इन अयोध्या कांड। हम्म, इसके नीचे देयर इज अ नोट गिवन, हम्म, ठीक है, बिकॉज श्री राम ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम्म, दिस इज द आइडिया वी हैव ना, बाय एंड लार्ज श्री राम तो ऐसे कह ही नहीं सकते। वी आर यूज्ड टू सीइंग श्री राम एज अरुण गोविल जी, हम्म, से कुछ भी हो जाए सब चलेगा, नो इमोशंस, है ना, जनरली वैसा देखा है हमने, which he is not in Valmiki Ramayana, but anyways, hence later day commentators over time they've made a note, Shri Ram didn't mean it, he was हम्म, only testing Lakshman. अच्छा अच्छा अच्छा, Anyways, सबका जैसा भाव है, करेक्ट। but how are they deriving that Shri Ram didn't mean it? I don't know. I don't want to disrespect any commentator. So later on, this is one of the things which people should know कि भाई हाँ, इस प्रसंग के लिए लोग commentators ने ऐसा कहा है कि उनका वो तो सिर्फ टेस्ट कर रहे थे, वो खुद से ऐसा एक्चुअली मानते नहीं थे। बट आई टेल यू व्हाई आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दैट कमेंट। बिकॉज जब शुरुआत में श्री राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं नारद जी, नारद मुनि जब डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनको कहा गया है कि ये कैसे है, पुरुष सारज्ञ, ये जो मनुष्य होते हैं, ही रीड्स पीपल वेरी वेल, ठीक है, ही अंडरस्टैंड्स द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एवरी पर्सन वेरी वेल, ही इज अ गुड रीडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। अब जिनको सबका पता है वो अपने पेरेंट्स का नहीं मान जानेंगे क्या, ठीक है। एंड दशरथ का जो बायस टुवर्ड्स द वाइफ, वो तो कौशल्या माँ भी कह रही है, एवरीबडी नोज, मंथरा इज आल्सो नोज दैट, राइट? सो हाउ विल इट एस्केप हिम, राइट? सो ही क्लियरली नोज, in spite of all that, he chooses to still be an obedient son and he still goes. That is unka badhapan, right? But not because he has lost sight of the fact and he will never think it, because it's not good or bad, it is what it is, which he has assessed of his parents. Do you think that this entire colonial or pop culture interpretation has affected how we view characters like Sita ji? So the easy answer is yes, but the tough answer, it is not just pop culture. Can you elaborate? Because if you see later day Ramayans that are written, right, हमारे वाले ही, उसमें भी सीता जी को थोड़ा सा ऐसे अबला नारी जैसा कैरेक्टर बना दिया गया है ऑलरेडी, इवन बिफोर इट कम्स टू पॉप कल्चर, ठीक है। नाउ व्हाई इज दैट सो? अगेन, विदाउट गेटिंग इनटू द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ इट, people retell stories based on the what they expect in their age and time, ठीक है। तो ओवर टाइम उनके समाज में उनके अनुसार जो स्त्री का रोल होता था या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती थी, बिकॉज श्री राम हैज टू बी आइडियल, सीता जी हैज टू बी आइडियल। नाउ आइडियल इज डिफाइंड, आइडियल इज टाइम बाउंड, era bound, right? उनके समय जो आइडियल था, so they had already started a lot of retellings already have that inclination, which was not considered misogynist because it was considered ideal for now, that time, for that for time, that society, for that time. But the same ideal coming to 21st century obviously looks oppressing. Yeah. But instead of checking कि भाई ये जो बता रहे हैं, is it in the original or is it really this? What happened now is that fiction writers stopped studying the epics at all. उनको लगा कुछ भी बोल सकते हो. They used that middle-aged depiction to then interpret it in this way, कि ये misogynist है, ये है, वो है, rather than doing the actual research of the study. That's my take. Right. What is your take on this? No, absolutely agree. And in fact, there are, if you see the different retellings of the Ramayana की तो बहुत सारी retellings है, महाभारत की शायद उतनी नहीं है, पर रामायण की तो हर भाषा में एक आपको adaptation मिल जाएगा। I think there are more hundreds. 300 तो 300, 300 तो हैं। और Is that the right number though? Doesn't really matter. See, the idea is that the story was so popular that for hundreds and thousands of years, people were adapting it to suit their social milieu, you know. Or not just in India, abroad also. आपको थाईलैंड में मिलेगी, कंबोडिया में मिलेगी, म्यांमार में मिलेगी, मलेशिया में मिलेगी, इंडोनेशिया में मिलेगी रामायण, और हर एक रामायण अलग है थोड़ी। सो जैसा अमित जी ने भी बोला दैट वो सोसाइटी में मे बी मिडिवल टाइम्स में, यू नो, मे बी जब रामचरितमानस जैसे लिखी गई थी 16th सेंचुरी, राइट, सो व्हेन, यू नो, मुगल्स वर रूलिंग, it was a very different society than the original Vedic age, right? And we know there were a lot of changes, you know. So उस टाइम में भी अगर आप देखेंगे अलग अलग रीजन्स की जो अडेप्टेशंस है, उसमें वहाँ के हिसाब से उसको कैसे अडेप्ट किया गया है। जैसे बंगाल में शक्ति वर्शिप ज्यादा थी, राइट? तो एक आपको लेडी को अबला दिखाना may not have gone down well with the society. So वहाँ पे एक एडिशनल स्टोरी ऐड की जाती है जो सहस्त्र रावण की है।
सो जो बंगाली वर्जन है, जो कृतिबाज ओझा का वर्जन है, सो एक अलग एक स्टोरी ऐड की जाती है जिसमें सहस्त्र रावण एक और राक्षस है जो रावण को मारने के बाद जब ये लोग अयोध्या आ जाते हैं, उसके बाद कुछ ऋषि मुनि आते हैं इनके पास और वो कंप्लेन करते हैं कि एक सहस्त्र रावण है जो बहुत बड़ा बहुत स्ट्रांग राक्षस है और वो हमें तंग कर रहा है। सो राम जी एज एक्सपेक्टेड एज राजा वो जाते हैं उससे लड़ने के लिए और वहां जाके राम जी उसको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं एंड अल्टीमेटली ही फेंट्स, आई थिंक ही फॉल्स अनकॉन्शियस इन दैट फाइट और सीता जी तब काली का रूप लेती हैं रियली टू किल दैट डीमन। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी का पर्सपेक्टिव कि उस टाइम कैसा था, आपकी सेंसिबिलिटीज क्या थी और उस हिसाब से वो कहानियां मॉडिफाई हुई है। बट एज अमी जी सेड, यू नो, द ओरिजिनल इज वाल्मीकि रामायण, दैट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री में दो ही बुक्स आती है जो यू नो ऑथेंटिक हिस्ट्री मानी जाती है, विच इज रामायण एंड महाभारत। सो उन्होंने जो लिखा है दैट इज द मोस्ट ओरिजिनल वर्जन ऑफ द स्टोरी। उसके बाद आप उसको कितना भी मॉडिफाई कर लो, आप लक्ष्मण रेखा डाल दो, आप सहस्त्र रावण डाल दो, हनुमान आप जी का गधा डाल दो, हनुमान जी की गदा डाल दो, आप मतलब कुछ भी कर लो, दैट हाँ, दोज आर एम्बेलिशमेंट्स Yeah. to suit that particular time when the story was written. True. So coming back to the Agni Pariksha of Ma Sita, what does that exactly represent? Is that like a societal thing, symbolic thing, spiritual thing? What does it mean? in the Valmiki Ramayana, it is very much the Agni Pariksha. ठीक है. However, what people do is they cherry pick quotes. They will only see सीता जी को श्री राम ने बोल दिया कि I didn't come here to rescue you. I came so that मेरे पुरुषार्थ पे कलंक ना लगे और मेरे परिवार पे कलंक ना लगे. You are free to go wherever you want. I didn't come to rescue you. I just came to fight Ravan because he had challenged me. ऐसा वो बोलते हैं. So when he says this, okay, now we have to understand something before this. श्री राम की जो हालत है when सीता जी is kidnapped is in, what do we say, the He's man shattered. just loses it. He's shattered. ठीक है. घड़ी घड़ी वो बेहोश हो जाते हैं, घड़ी घड़ी गुस्सा हो जाते हैं, ना खा रहे हैं ना कुछ है. He is so madly in love. He's like, I don't want to live without my wife. ऐसी उनकी हालत है. ठीक है. Yeah. He makes this alliance with the Vanar Sena, goes all the way, couldn't have known कि कैसे जाए, but he does all that just to get Sita Ma. Just couple of days prior, when इंद्रजीत जो है वो पूरा एक जो माया जाल रचता है जिसमें सीता जी का delusionary वो दिखाता है कि वो मर गए. तभी भी if it was only for Ravan, Shri Ram shouldn't have cared, right? But he faints. He's Yes. like, मुझे अभी कुछ चाहिए ही नहीं, मैं जा रहा हूँ अब कि मैं तो यहीं मर जाऊंगा, लक्ष्मण तुम चले जाओ. ठीक है. This has just happened 2 or 3 days prior to the whole Agni Pariksha episode. Acha, now when the war has ended, Ravan has died, Vibhishan has become the Raja. See, now Shri Ram remembers something. Ki bhai, he is not just a husband anymore and they are soon going to go back to Ayodhya. 14 years have ended. ठीक है. So, the way the whole episode comes is that he tells, सीता जी जब आते हैं तब वो बोलते हैं कि जहाँ जाना है जाओ. Now, everyone is shocked. Lakshman is shocked, the Vanars are shocked कि ऐसे कैसे, because they had seen his halat, right? The way he was missing Sita ji. And he says this, so Sita ji, of course, is like, Arey, don't you know me? Why are you talking to me like a uncivilized man talks to an uncivilized woman? Right. Don't you know how we've grown up How together? loyal I am to you also. Don't you know what I am? Don't you know my character? You still are questioning this? ठीक है, if you're questioning, she also says, if this was really the concern, then why did you even come here? मुझे Why did you यहीं मर bother? जाने देते. क्यों आए आप? क्यों आए, किस लिए आए थे, आपको जरूरत ही नहीं थी आने की. तो ये सब वो कहती है. एंड देन जैसे विनीत जी ने शुरुआत में ही बोला था, शी टेल्स लक्ष्मण कि चिताम कुरु सौमित्र बिकॉज सुमित्रा सन लक्ष्मण, चिता जलाओ और मैं अग्नि परीक्षा दूंगी. एंड वी आर टोल्ड शी गोज अराउंड द अग्नि एंड गोज इनसाइड. एंड देन अग्निदेव कम्स आउट एंड सेज अस्याम पापम न विद्यते, इसमें कोई भी पाप नहीं है. नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट कम्स आफ्टर दिस. So when Agnidev comes and says Asyam papam na vidyate, you know what's the next line that Shri Ram says? Shri Ram says aham api eva gacchami, मुझे भी मालूम है, मेरे को तो मालूम ही है कि वो उसमें कोई पाप है ही नहीं. अनन्याम हृदयाम सीता मत चित्त परिवर्तिनी, सीता का जो हृदय है वो केवल और केवल मुझ में ही है, मैं ये जानता हूँ 100%, मुझे कभी इस पे कोई संदेह ही नहीं है. I did not have even an iota of doubt on this. However, pratyartham tu lokanam, for the sake of the people.
so that people don't question her character, because once we go back, तभी तो ड्रोन वोन तो था नहीं ना, का कैसे था कैसे नहीं, who is to say सीता जी स्वयं गए थे या नहीं गए थे, whatever, right? People will question. Yeah. But I don't want people to question the character, not just of my wife, but also of the queen, right? I did not stop her from doing Agni Pariksha. He says, मेरा और सीता का रिलेशन कैसा है, जैसे सूर्य की प्रभा हो, the sun and the light, the sun Yeah, rays. yeah, yeah. जैसे प्रभा को सूर्य से अलग नहीं कर सकते, वैसे सीता को मुझसे अलग नहीं कर सकते. This was never going to be. So this is what he says. Now this part, doesn't it change the entire episode? Where Sri Ram is actually not thinking about himself, but the fact that he's thinking about the character of Sita. Not the character of Sita. That people don't question the character of Sita. Not that he has ever questioned her character. So that's how the episode comes. Wow. Okay. Anything you want to add, Vineet No, ji? I think exactly. Again, we're coming back to that situation that अगर आप scriptures पढ़ोगे ही नहीं ना, तो ये सारे doubts रहेंगे ही. Once you read this episode, it's very clear. And in fact, when you start reading, or initially जब वो आता है that how can Ramji be so rude? How can he say such words to his wife, to his beloved wife? क्योंकि अगर आप पूरे रामायण में आप देख रहे हो कि यार वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और suddenly he's he has this persona which is not identifiable, and then when he gives this reason, और in fact सब देवतागण वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद, सब देवता आते हैं, इंद्र वगैरह, दशरथ आते हैं, दशरथ comes in a spirit form, and there's so many gods that appear there, शिव जी आते हैं, सब आते हैं, and then they tell him that why are you behaving like a common man, you're Narayan. And Ramji also says that yes, I am, before this we have never shown him as a Narayan avatar. But here you have all these gods coming in and telling him that you are Narayan. But he says, I am behaving like a human. I'm thinking like a human. I'm doing whatever a normal human would do. And even in that behavior, he's still thinking of his wife. That when she goes to Ayodhya, उनके ऊपर कोई लांछन नहीं आने चाहिए, कोई जो आँच नहीं आनी चाहिए. हाँ, तो उन्होंने अपनी तरफ से सेफगार्ड करने की पूरी कोशिश की है. It's regrettable that still, some incidents happened later. But from his perspective, he wanted to make sure कि हमने जो वनवास में रहे हैं, उसके बाद 1 साल सीता अलग रही हैं, और पता नहीं किस कंडीशन में रही हैं लंका में. Now he doesn't want to see her unhappy. So for that perpetual, eternal happiness to follow in the future, some ऐसे कटु शब्द उनको कुछ बोलने पड़े वहां पे, सिर्फ इसलिए ये दिखाने के लिए कि सीता का जो कैरेक्टर है वो blemishless है. Was he also trying to show that even God can think like man and God is not just some... See, God, he did not behave like a god anywhere. अगर आप देखेंगे तो सिर्फ I think एक वो इंसिडेंट है जब वो ब्रह्मास्त्र उठा लेते हैं सागर को सुखाने के लिए, उसके अलावा कहीं पे भी वो इस तरह उन्होंने बिहेव किया ही नहीं है कि वो भगवान है. हाँ, वही, to show that even God can be man. That's what I'm asking. See, whole Mahabharata Ramayana, they are men only, right? क्या कहते हैं उनको, And they're पुरुष also अवतार. governed by the laws of Yes, nature and mankind. Exactly, वो पुरुष अवतार में है. Otherwise, what do we learn from it? अगर कोई पुरुष नहीं है and they are behaving in a certain way, what do we learn from it? Nothing, right? The reason that they are in पुरुष अवतार so that हम उसे follow कर पाए. अगर वो human नहीं है और भगवान है तो हम कैसे उनको follow कर पाए? मतलब different kind of भगवान, right? So वो जो भी कुछ कर रहे हैं, वो जैसे मनुष्य कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं. As in, he is guided, as you very rightly said, by the laws of Prakriti and the laws of being a human. But a question I have now is on Kunti, very less talked about. And while she had उन्होंने बहुत सारे वरदान मांगे, she was blessed with very powerful sons. Why isn't she so much talked about, and why is she not seen as a figure of spirituality and political diplomacy? So why again? I think same. We don't know enough about her. Exactly. Except हमें ये पता है कि हाँ पांडवों की माता थी. But अगर आप देखने चाहेंगे उनका character, the kind of difficulties she faced, or she must have faced. सबसे पहले तो आप एक dealing with a co-wife who's younger and probably more beautiful, who's more attractive to your husband. एक तो वहीं पे एक situation है जो उनको deal करनी थी. Then they had to move to the forest because of a curse that her husband got. तो उनकी तो कोई गलती नहीं थी दोनों की, कुंती और माद्री की.
पर क्योंकि पांडु को अब वनवास लेना था तो उनको भी साथ में जाना पड़ा। फिर वहाँ पे इमेजिन सी मैरिटल लाइफ का एक राइट है, द कॉन्जुगल ब्लिस दैट यू गेट विद योर पार्टनर। क्योंकि पांडु के ऊपर श्राप था, दे कुड नॉट इवन गेट दैट, राइट? स्टिल दे वर लिविंग टुगेदर, वो छोड़ के नहीं गई अपने पति को। मतलब बहुत सारी ऐसी जो सिचुएशंस जो हमें पता है बट वी डोंट थिंक अबाउट देम। इमेजिन द वे दे वर लिविंग इन द फॉरेस्ट, और वो प्रिंसेसेस थी, प्रिंस और प्रिंसेसेस थे, एंड दे आर डीलिंग विद लाइफ इन द मोस्ट रॉ फॉर्म विच कुड हैपन इन अ फॉरेस्ट। और उसके बाद जब उनको वो पांडु को बताती हैं अबाउट द वरदान, द बोन शी हैज, उनके अपने पुत्र हुए ठीक है, पर जब पांडु उनको बोलते हैं कि माद्री के भी होने चाहिए, माद्री को भी तुम वरदान दो, शी वाज रिलक्टेंट, if I remember, but still she went ahead and gave it. And then Madri very smartly she invokes अश्विनी कुमार। तो जो अश्विनी कुमार क्योंकि ट्विंस हैं तो उनको एक ही बार में 2 बेटे मिल गए, and she doesn't feel happy about it, she complains about it, she said अब मैं दोबारा नहीं दूंगी वो मंत्र। So उनका कैरेक्टर जो है ना, हमने एक बहुत ही लिमिटेड फ्रेमवर्क में उनको डाल दिया कि ये पांडवों की माता थी। नहीं, उसके पहले वो एक राजकुमारी थी, उसके पहले वो एक वाइफ थी जिन्होंने अपने हस्बैंड के जो भी सर्कमस्टांसेस आए उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको टैकल किया, एंड शी हैंडल्ड ऑल दी सिचुएशंस दैट वर देयर। इनफैक्ट उसके बाद जब पांडु की मृत्यु हो जाती है तब बिकॉज माद्री इज लिटिल गिल्टी and she says that I'll also enter the pyre, and she takes on the responsibility of her co-wife's children to this extent कि जब यक्ष प्रश्न का जो एपिसोड आता है पूरा महाभारत में, उसमें यमराज इनको टेस्ट कर रहे होते हैं यक्ष बन के, और आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल इन द ऑडियंस वुड नो इट। सो देयर इज दिस सिचुएशन जब पांडव जंगल में है, वनवास में है, और वहाँ पे वो पानी की तलाश कर रहे हैं, तो उनमें से एक भाई पेड़ के ऊपर चढ़ के ढूंढता, दूर उसे झील दिखाई देती है, तो वो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है आप जाओ पानी लेके आओ, वो वापस नहीं आता। एक एक करके सारे भाई जाते हैं, कोई वापस नहीं आता है। फिर अल्टीमेटली युधिष्ठिर खुद जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं उनके चारों भाई बेहोश पड़े हुए हैं पॉन्ड के किनारे पे। फिर वहाँ पे उनको एक यक्ष दिखाई देता है जो उनसे क्वेश्चन, जो उनको बताता है कि ये मेरी परमिशन के बिना पानी लेना चाह रहे थे, इसलिए ये इनका ये हाल हुआ है, तुम्हें मैं अलाउ करूंगा पानी लेना अगर तुम मेरे क्वेश्चंस आंसर कर दोगे। सो दैट अगेन इज अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन। जो यक्ष प्रश्न जो पूरा एपिसोड है, दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन ऑल्सो, वेयर बहुत ही रिलेटेबल वो क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे। पर उसमें जो हमारे अभी डिस्कशन के लिए रेलेवेंट है, उसमें एक क्वेश्चन वो बोलते हैं कि भाई मैं तुमसे खुश हूँ, फाइनली मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जिंदा करूंगा, तो तुम बताओ किसे जिंदा करना है। और उसका आंसर युधिष्ठिर क्या देते हैं, वो बोलते हैं नकुल या सहदेव में से किसी एक को जिंदा कीजिए। दैट इज द लव दैट कुंती हैज इनकलकेटेड इन हर चिल्ड्रन। आज की डेट में हम हमेशा क्या, आप व्हाट वाज द सिंड्रेला स्टोरी एंड ऑल, हाउ डू स्टेप मदर्स बिहेव, दैट इज व्हाट वी आर टॉट, ऐसे स्टेप मदर्स या स्टेप डॉटर्स, स्टेप सन्स का ऐसा रिश्ता होता है। महाभारत में स्टेप मदर, अभी तो मदर इन लॉ का भी बट आप ये देखिए हजारों साल पहले व्हेन दे वर डीलिंग विद दीस सिचुएशंस, कितनी उन्होंने नुआंस्ड वे में अपने बच्चों को भी सिखाया है कि तुम्हें अब ये तुम्हारे स्टेप ब्रदर्स है, बट ये दीज आर अ पार्ट ऑफ यू। सो आई थिंक बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, आई एम श्योर अमी जी विल आल्सो शेड सम लाइट ऑन इट प्लीज। So I think you've covered the full beach ka part. I'll just add the शुरुआत और अंत का. In fact, why don't we know? Unlike रामायण, the thing with महाभारत is it is so huge कि हम जो भी जानते हैं वो केवल टीवी के कारण जानते हैं, है ना? करेक्ट। और टीवी में कुंती जी का कितना दिखाते हैं, एक तो वो Nothing. कर्ण का जन्म एंड देन पांडवों की माँ, राइट? बेली। एंड कर्ण के जन्म में देन बेसिकली शी इज विलेनाइज्ड कि कर्ण को छोड़ दिया, दैट इज व्हाट द जनरल थिंग इज, राइट? What people forget, so when I was actually writing my first book, Mahabharat Unraveled, lesser known facets of a well known history, I have a whole chapter on Kunti and I call her the warrior mother, because of the way, as Vinny ji very rightly said, she brings up the Pandavas, but even her own life. Jaise we feel very bad for Karn because the mother left him and he was brought up by foster parents. Kunti herself is brought up by foster parents. She is the daughter of Shursen, who's कृष्णा के जो पिताजी हैं वसुदेव, उनके पिता हैं, सो वसुदेव उनके सगे भाई हैं, सो टू से। परंतु वो सबसे बड़ी हैं
और कुंती भोज जो मित्र हैं शूरसेन के, उनके बीच ये है कि मेरा पहला बच्चा, आई विल गिव इट टू यू. सो कुंती इज द पहला बच्चा एंड कुंती इज गिवन अवे. सो कुंती इज ऑल्सो ब्रॉट अप बाय फॉस्टर पेरेंट्स इन दैट किंगडम ऑफ कुंती भोज का जो किंगडम है. अब जब वो दुर्वासा वाला एपिसोड होता है ना, उसमें दिखता है दैट शी इज ऑलवेज ट्राइंग टू बी द गुड गर्ल, बिकॉज फॉस्टर पेरेंट्स है ना, यू हैव टू एंश्योर कि वो आपके लिए कुछ उनका हमेशा इंप्रेशन अच्छा रहे. लेटर ऑन इन दिस एपिसोड विद कृष्णा, जब एंड में कृष्णा युद्ध में जाते हैं, तभी ऑल्सो शी सेज कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे दे दिया एंड आई देन लिव्ड विद कुंती भोज लाइक दैट. तो growing up in a foster house and when she was still young, just out of curiosity, the whole Vardhan Suryadev ke saath jo hua, which she had no control on, it was like very a child, she was probably a teenager when that happened, right? And then bacha hua, kya kare, she was scared, she let him go, and we use this to penalize her all the time. जबकि anyways teenage 12-13 वर्ष तक तो बच्चा अगर anyways crime करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, वो crime नहीं गिना जाता. Still she is villainized for it, for being in that helpless situation. Yes, it was not the greatest situation, but it happened. After that, when she gets married, and the whole thing with Vineet ji told us, right? She goes through a lot of ups and downs, ups and downs, ups and downs. In fact, it doesn't even end after they come back to Hastinapur with the kids. वो जो 5 बच्चों के साथ वो जब हस्तिनापुर आती हैं, वहां तो एक नया ही गेम शुरू हो जाता है, बिकॉज दुर्योधन इज वेरी अनहैप्पी, ही इज वेरी जेलस ऑफ द पांडव्स. तो ही वो सारा गेम खेलना शुरू कर देता है. भीम इज ही ट्राइज टू किल भीम, ऑल दैट, राइट? चलो भीम बच जाते हैं. नाउ सी, शी डजंट क्रिब एंड कंप्लेन और एनीथिंग, शी कीप्स क्वाइट बिकॉज शी नोज व्हाट इज हाउ इफ शी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग एंड फाइटिंग, 5 बच्चों का क्या होगा? उनका ध्यान रखना है. So she chooses to stay quiet, doesn't complain while fulfilling all her duties as the daughter-in-law of Hastinapur. Doesn't end there. Lakshagra hota hai. After the youngster, the prince have now grown up, right? Lakshagra, again she's in the forest. वापस उसका forest में शुरू होता है. Some years of Shanti in Indraprasth, again the youth krida happens. Correct. So as a mother, she's always going through the ups and downs, ups and downs, ups and downs. उसके बाद जब युद्ध का निर्णय लेना है कि क्या करे, शुड द युद्ध हैपन और नॉट हैपन, डिसीजन इज टेकन, युद्ध होगा ही, नो चांस टू बैक आउट नाउ. तभी कृष्णा गोज टू कुंती एंड ही सेज कि डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द पांडव्स. दैट एंटायर कॉन्वर्सेशन, और रादर द मैसेज दैट कुंती गिव्स टू कृष्णा to be sent to Yudhishthir, it is worth a read, and I've captured that in the Warrior Mother, that episode, where she narrates an episode of Vidula and Sanjay, again mother and son, and how Vidula is encouraging her son, डांट के भी to fight. She says कि ये आप युधिष्ठिर को बोलना कि हाँ, शांति is important, क्षमा is important, forgiveness is important, but he shouldn't forget कि वो राजा भी है, और राजा होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना भी उसका कर्तव्य है. So this is the time for which such yuddha, ऐसे धार्मिक युद्ध, are the times for which a kshatriya mother gives birth to sons. This is the time for them to live up to it. Please tell him he should do what he needs to do, even if it's a war, and tell him another thing. I am not hurt by the fact that उनको वनवास जाना पड़ा, वो सब तो ठीक है. But what I'm most hurt is the fact the way Draupadi was humiliated. That I can't tolerate at all. So my sons should do what she wants. They should do what Draupadi wants, right? So she, of course, she knows कि जब युद्ध होगा तो कुछ भी हो सकता है. You never know. But this is the message she gives even at that point. But after all this, ये सब तो होता है, ठीक है, माँ होते ही उसने सब किया. जब युद्ध समाप्त हो जाता है, and she's taking care of Dhritarashtra and Gandhari. युद्ध इतना सब होने के बाद भी she's taking care of them. 15 वर्ष बाद when Dhritarashtra wants to go back, वापस उसे जंगल में चले जाना है कि भाई हो गया, we've lived enough, दुख तो फिर भी है, इतने सारे बच्चे मर गए. Kunti ji could have stayed back, no? She doesn't. And enjoyed all the luxuries, yeah. In fact, when she starts going away with Dhritarashtra and Gandhari, तब कहते हैं भीम कि आपने तो हमको कहा था कि युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करना चाहिए. अब जब हमने युद्ध किया और फाइनली शांति आ गई है, तो आप हमको छोड़ के जा रहे हो. तो इफ तुमको जाना ही था तो कहा क्यों हमको युद्ध करने के लिए? And she's like, मैंने मेरे लिए नहीं बोला था. Whatever I had to enjoy, I enjoyed with your father, she says. You had to do your dharma. I cannot forget what is my dharma. My dharma is to take care of my old sasu and sasur. Although she's the daughter, she's the younger one, but क्योंकि वो बड़े हैं तो उसे सास ससुर जैसे ही वो मानती है.
इसलिए मैंने अपना जो था वो रह कर दिया, तुम अपना धर्म निभाओ, आई विल निभाओ माई धर्म, एंड शी गोज अवे, शी डजंट नीड टू. सो दैट होल सर्विस ओरिएंटेशन या सेवा भाव, कर्तव्य भाव कुंती में इतना स्ट्रांग है. और क्योंकि कुंती में इतना स्ट्रांग है, 5 बच्चों में भी वो आया है. क्योंकि कुंती हैज बीन सो इम्पार्शियल टू द 5 kids, they are together in good and bad and everything. So the Pandavas are what Pandavas are because Kunti is what Kunti was. It's a कितना beautiful कितना character. ऑड है ना कि वी नो सो लेस अबाउट कुंती माँ. आपको लगता है कि कुंती माँ का जो फैसला था कर्ण के आइडेंटिटी हम्म, को थोड़ा सा छुपाने के लिए हम्म. एक पर्सनल फ्लॉ था कि कोई तरह की स्ट्रेटेजी थी? I think मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में अभी बताया. हाँ. वो बहुत छोटी थी, ठीक है, उनका विवाह भी नहीं हुआ था. She was a young girl. या And she didn't even know कि होगा क्या, because Durvasa Rishi gave her this mantra and said this mantra will never fail. You can get whatever you want. You can get a child if you want. Now this is a child. This is a young girl. She's like, होता होगा क्या ऐसे? Think of it, ना? Let me just try, without even thinking what the consequences was. आज 12-13 वर्ष का कोई बच्चा है, वो कितना सोचेगा? That is what her situation is. But now the बच्चा happened. She had no way out. She tries to tell Suryadev कि बाबा no, please go away. I don't want it. But Suryadev is like, this is, ये तो अमोघ है, ये तो जो now this has to happen. No way out. This has to happen. So what would she do then, right? And the kid happens. She's so scared that of the fact कि उनके जो माता पिता हैं, जो foster parents हैं, उनका reputation खराब होगा. So she lets the kid go. Do we hold this against a child who's such a young child? Was it a mistake? For sure. But was it a mistake committed with some intention of hurt? Definitely not. It happened. She lets Karn go. Like she grew up in a foster parents' home, Karn also grew up in a foster parents' home. Parents who really loved him. Adhirath और राधा जो है वो कोई ऐसे तैसे नहीं थे. They were pretty well off and they really loved him. He was brought up with a lot of love and care, right? Just like Kunti also was. So should we just penalize her for that one thing? I don't know. There is another aspect to it. यहाँ तक तो ठीक है. What people say is कि बाद में कर्ण को क्यों बताने गए? कभी नहीं बताया. Finally जब युद्ध होने वाला था तभी कर्ण को बताने जाने की क्या जरूरत थी? तो that time also the decision for युद्ध is taken. ठीक है. परंतु she is thinking कि is there a way to still stop it? There was only one way to stop it. दुर्योधन तो मानने वाला नहीं था. हाँ. और दुर्योधन किसके कारण इतना उछल रहा था? कर्ण के कारण. ठीक है. जितना दुर्योधन को युद्ध चाहिए था उतना कर्ण को भी युद्ध चाहिए था. ठीक है. He would just not allow Duryodhan to settle or negotiate or reconcile. So she thinks maybe let me make this one last try. कहीं वो मान जाए. अगर वो मान जाएगा तो युद्ध नहीं होगा. Hence she approaches Karna and tells him. By that time Karna already knows कि this is my mother. पहले से उसे मालूम है. ठीक है. But when Karna, of course it's a very emotional situation for Karna as well. माँ से ऐसे मिल रहा है तो किसी को भी बुरा लगेगा. So I understand his perspective completely. कि he feels bad and he says कि कभी my mother is Radha only because she is the one who brought me up. But then people say that she asked for that प्रतिज्ञा कि आप किसी और को मत मारो, अर्जुन को मारो. This is not what she asks. वो कुछ नहीं मांगती है. वो तो केवल इतना कहती है कि अपने भाइयों के साथ मत लड़ो बिकॉज अगर आप सब एक साथ हो जाओगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा. आप एकदम इनविंसिबल हो जाओगे. बट वो फ्लो में भावना में कर्ण स्वयं ही बोल देता है कि नहीं ये तो नहीं होगा, युद्ध तो होगा परंतु मैं आपको इतना प्रॉमिस दे रहा हूँ. सो इट इज हिम हु इज गिविंग दैट प्रॉमिस कि आपके हमेशा 5 बेटे रहेंगे. Either Arjun or me, but the others will survive. Yeah, So this is yeah. what he himself offers. She doesn't ask for it. She's only trying to make this one last ditch attempt to stop the war. Okay, okay. Gandhari, now I'm coming to Gandhari. And this is a long question. गांधारी ने चूज किया कि मैं एक ब्लाइंड फोल्ड पहनूंगी. ठीक है. Was she actually just a blindfolded queen? Or was she a silent strategist? And was she completely blind to her son's actions? What's going on here? What's the real reason behind that blindfold? वो बताइए. So जितना मैंने पढ़ा है महाभारत में काफ़ी इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज बताई जाती हैं कि वो शकुनी सो ओरिजिनली जैसे महाभारत में स्टोरी दी गई है वो ऐसे लिखा गया है कि
भीष्म को पता चलता है कि गांधारी जो है उन्होंने शिवजी से एक वरदान प्राप्त किया है कि उनके 100 पुत्र होंगे। सो इमेजिन उस टाइम में पुत्रों का होना मतलब पावर का होना, राइट? एंड स्पेशली फॉर अ क्षत्रिय, फॉर अ किंग, you have 100 sons, that means you are invincible, right? Imagining कि हाँ वो सारे sons आपके faithful होंगे और कोई आपको ही नहीं attack कर देगा, which did not happen at that time, right? It started much later in a medieval times. But उस टाइम जब उन्हें पता चलता है भीष्म को, तो तब वो जाते हैं वहाँ से उनका गांधारी का हाथ धृतराष्ट्र के लिए मांगने के लिए। और वहाँ जो राजा हैं, जो गांधारी के पिता हैं, he is a little skeptical as far as I remember because he knows Dhritarashtra is blind. और ये गांधारी को भी पता चलता है। बट आप इमेजिन कीजिए कि गांधारी शी टेक्स दैट डिसीजन व्हेन शी कम्स टू नो कि जो मेरा होने वाला हस्बैंड है, जिसके साथ मेरी शादी तय की जा रही है, वो ब्लाइंड है। शी टेक्स द डिसीजन यूनिलेटरली। शी डिडंट, एज फार एज आई रिमेंबर, महाभारत में कोई डिस्कशन नहीं है उसके ऊपर। शी डिसाइड्स ऑन हर ओन एंड शी डिसाइड्स कि अगर मेरा पति नहीं देख सकता है, आई विल ऑल्सो live the life that he's living. So she does it out of love for a person she hasn't even met. I think it shows a lot about her character. So उनको ऐसा strategist बोलना may not be actually possible. हाँ, बट जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने पढ़ी है वो इंसिडेंट महाभारत में, उसमें मुझे लगता है इट शोज हर एज अ वेरी डिवोटेड वुमन who doesn't, वो हस्तिनापुर आने के पहले ही वो पट्टी बांध लेती है, just when she knows that this is her future husband and she wants to experience what he is experiencing, कि उनकी लाइफ कैसी है, तो उसी तरह से वो जीना चाहते हैं। एंड आई डोंट नो, मतलब उसमें स्ट्रैटेजी थी। और आई मे बी इन अ डिफरेंट वे कि जैसे वो बोलते हैं ना कि आंखों में पट्टी बांध ली, जो आजकल बोलते हैं ना लोग कि मतलब कोई बच्चा अगर शरारत कर रहा है तो माँ कुछ बोलती नहीं है या बाप भी कुछ नहीं बोलता है, तो बोलता है इन्होंने तो आंखों पे पट्टी बांध ली है। दैट इज अ फ्रेज दैट वी यूज नाउअडेज। तो उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि because she was quiet for her son's actions. No. So No? whatever Vineet ji said is 100% right. And he's Okay. very nice. He knows where your question is coming from. But he's still being nice. I'm not so nice. So I'll Please. tell you where your question is coming from. It is coming from this whole had bakwas story about Shakunis, Exactly. which is propagated, right? कि पूरा महाभारत तो शकुनी ने कराया. And that's what the whole episode is about, to bust these myths, Correct. right? कि वो शकुनी, because Bhishma killed his entire family. Absolute 100%, 110% बकवास. ऐसा कुछ भी महाभारत में नहीं है. कुछ भी नहीं है. Shakuni also probably is not as scheming as they make him out to be. He is not even langda. Okay. ऐसा कुछ नहीं है. It is actually very simple. Bhishma goes because he's heard about कि Gandhari has this boon. Also Subal, her father, is initially like, किसी को भी लगेगा ना यार, the son is andha. So he thinks about it. But he accepts. You know why? Because Hastinapur is a way bigger and समृद्ध राज्य. ठीक है. आज भी अरेंज मैरिज में हम देखते नहीं है क्या कि अरे if the family is good, तो लड़का में थोड़ा सा 19-20 हो तो गवर्नमेंट जॉब कुछ भी of course, right? Everything else is compromise कि भाई बाकी सब ठीक है. तभी वो वही सोच रहे हैं कि इतना बड़ा है. अच्छा, अब जब शादी होगी तो फायदा तो having a strong ally like Hastinapur is in favor of Subal also. तो इसमें कोई ये नहीं है कि they were against it. और फिर तो और भी स्टोरी ऐड हो गई है कि क्या गांधारी मांगलिक थी और वो बकरी से शादी करा दी थी. ठीक है. फिर भीष्म को पता चलता है कि उसकी तो पहली शादी हो चुकी है. That is why he captures. हद बकवास मन में आए, pull out of your ass and throw a story. ऐसा हो गया है महाभारत रामायण को लेके. This is one of those. ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं था. It was actually very simple. Her character is beautiful, especially towards her husband, and it is only out of devotion that she does what she has done. The question can be asked, was it right or not? That is a different matter altogether. But is there any backstory? Is there any strategy? Is she thinking? Is there Shakuni ka game? Nothing like that. It is just pure devotion with which she's done that action. But then she was quite मतलब जैसे काफी जो उनका जो बेटा है वो काफी कुछ कर रहा है, उसके लिए उन्होंने कुछ मतलब there's nothing mentioned that we know of, that that did she try to stop her son, उनको समझाया, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं. She does. So देखो, एक तो again as I said, जब उन्होंने पट्टी बांध ली, उन्होंने भी भावनाओं में कर दिया होगा, right? To show her devotion that way, it doesn't matter, he can't see, I won't see. I will not enjoy anything that my husband doesn't enjoy.
सी बट महाभारत में ना पूरा यही तो होता है कि जैसे हमने अभी दशरथ कौशल्या की बात करी, दशरथ कैकेयी की बात करी, वी आर ऑल ऑलवेज गोइंग थ्रू एथिकल डायलेमास. तभी उसने सोचा नहीं होगा कि आगे चल के क्या होगा, राइट? क्लियरली ब्लाइंड फोल्डिंग would have become a handicap when she has to Absolutely. bring up all these kids. And Duryodhan grew up in his own way. Also, why? Because he was pampered by his father to no end. बट ऐसा नहीं था कि स्पेशली आफ्टर ही ग्रोज अप, गांधारी डजंट से एनीथिंग. जब ये युद्ध का सब होता है तब शी टेल्स दुर्योधन, शी सेज कि भाई तेरे पास सब है, व्हाई डू यू वांट टू फाइट, लेट देम हैव व्हाट दे हैव. आल्सो इफ यू आर थिंकिंग कि ये सब तुम्हारी ओर से लड़ेंगे, भीष्म पितामह वगैरह, दे माइट फाइट विथ यू, बट उनका मन तो पांडवों की तरफ ही होने वाला है. शी डजंट इवन गिव आशीर्वाद टू दुर्योधन बिफोर द वॉर. ठीक है, सो हर ओन कैरेक्टर इज वेरी स्ट्रांग. But that action of blindfolding, could it have impacted her role as a mother? Definitely. Right? Definitely. Could there have been another way of doing it where she could have said, "ठीक है, my husband cannot enjoy, let me be his crutch." That could also have been another way, right? But Or again, let him see the world through my eyes. through my eyes. But see, वही होता है. She was also young when Correct. she got married, got carried away. Could somebody else have told her, Baba, do it this way? It could have changed. But everybody saw her satitva and they were like, wow, this is so great, such a devoted wife, which she was all her life. Which she absolutely was all her life. So this is where the whole issue comes ना, किसे हम कैसे मैनेज करें. बिल्कुल 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 बिल्कुल. एक कैरेक्टर मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, उनका नाम है मंदोदरी. वो एग्जैक्टली कौन है और उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? ये तो एकदम इनका सवाल है. अब बताइए फिर. So मंदोदरी, everybody knows कि रावण की वाइफ थी, but उनका जो ओरिजिन्स हैं, सी अगेन रामायण में ना बहुत सारा पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन भी है. So if you actually analyze, जो राक्षस थे, they were not very high in the hierarchy. असुर जो है, हम लोग बोलते हैं राक्षस, असुर, दैत्य, दानव. So there's a hierarchy even in that. And असुर is an umbrella term. ओके, असुर इज द अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर सारे आते हैं, दैत्य, दानव, राक्षस, आप प्रेत, पिशाच वगैरह आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, बट प्राइमरी दैत्य, दानव, राक्षस असुर कैटेगरी के अम्ब्रेला टर्म के अंडर आते हैं. अब उसमें जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं, दैत्य और दानव, कश्यप से बेसिकली, बिकॉज अदिति कश्यप ऋषि एक थे, इफ यू डोंट नो. सो कश्यप ऋषि थे और उनकी जो पत्नियां थी अलग अलग, उनसे सारी स्पीसीज जो इस दुनिया में हैं वो उत्पत्ति हुई है उनकी. सो अदिति जो थी उनकी पत्नी, उनसे आदित्यों का जन्म हुआ, जो देवताएं हैं जिनको हम देवता मानते हैं. सो इंद्र, अग्नि वगैरह, जो वरुण, सारे जो देवता हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं. दिति के पुत्र थे दैत्य, जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद, ये सारे जो है दैत्य कैटेगरी के हैं. फिर धनु के पुत्र थे दानव. ऐसे कर कर के हमारे अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं. राक्षस जो है ना, अब राक्षस वाज रिलेटिवली अ लोअर हायरार्की इन द असुरस. पर रावण जो लंका के राजा बने, उन्होंने लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि उन्होंने दैत्य और दानवों से भी लड़ाइयाँ की हैं टू बिकम दैट रूलर ऑफ द असुर्स. सो ही हैड टू फाइट अदर फैक्शंस ऑल्सो. तो चाहे वो आप ट्राइबल वॉर्स करो, इंटरनेशनल वॉर्स कर लो आप, मतलब, बट ही हैड टू बिकम शो हिज prowess that I am capable of ruling the asurs. Before he attacks the devas, he has to first cement his position within the clan. So Mandodari जो है ना, she was the daughter of May Danav. So दानव जो कैटेगरी है उसमें, and May Danav जो है, he is the architect of asurs. ओके. सो जस्ट लाइक देवताओं में विश्वकर्मा को हम बोलते हैं आर्किटेक्ट देवताओं के, वैसे मैं दानव जो है वो आर्किटेक्ट है असुरों के. ओके. सो इमेजिन ही मस्ट बी हैविंग अ बिग क्लाउट, and marrying her, his daughter, would have elevated Ravan. Again, see, this is not really written in Valmiki Ramayana. I'm just giving you sort of a understanding of It's like where an inference of that. So where is Mandodari coming from, Yeah. And then Mandodari marrying Ravan and dealing with his infidelity, everything that was happening. A lot of people think, again, ये हम वो रावण बैशिंग और करण बैशिंग वाला एपिसोड नहीं बनाना चाहते, but still, Ravan was a serial rapist
for lack of a better word, better Hmm. term to describe him, he was a serial rapist. Hmm. उसने हजारों महिलाओं को अबडक्ट करके अपने हैरम में भरा हुआ था. ये सब मंदोदरी के सामने हो रहा था. आप इमेजिन कीजिए कि उसकी मनोदशा क्या होगी. Hmm. स्टिल शी स्टूड बाय हर हस्बैंड Why? टिल द लास्ट मोमेंट. अब वो अमी जी बताएंगे. नहीं, प्लीज बताइए. See, there's no why there I because mean, that's she was how a it was. loyalist. She was staunchly supporting him through the war, through everything. Supporting मतलब she's been there with him, but Hmm. she tries to instill sense in him. Hmm. ठीक है, वो उनको समझाने का प्रयत्न करती हैं कि तुम मत करो ऐसा. This will lead to destruction of you as well as entire Lanka. Hmm. In fact, she loses her children also ना. Correct. अक्ष है, इंद्रजीत है, ये मंदोदरी के बेटे हैं. Hmm. They are also, as in they also die like that. So everything is destroyed. But रावण सुनता ही नहीं तो क्या? Hmm. What could she do? Hmm. So she had her own journey again. और उसमें भी आप अगर देखेंगे तो जिस तरह सीता जी जितनी डिवोटेड थी राम जी के लिए, मंदोदरी भी उसी तरह डिवोटेड थी रावण के लिए, इन स्पाइट ऑफ हिज फॉल्ट्स. सो पर उसमें रावण का कोई बड़प्पन नहीं है, मंदोदरी Correct. का बड़प्पन है. हाँ, वही Correct, तो. exactly. that it has nothing to do with Ravan being a guy जिसके वो अगेंस्ट नहीं जा सकती थी. She could have very well, she came from a very, her pedigree was higher than that of Ravan. So she could have easily stepped out of that marriage. But she continued. तो वो उसमें मंदोदरी का हमें कैरेक्टर बताता है that she was a sati. उनका नाम सतियों में गिना जाता है, who were devoted to their husbands. I want to basically sort of, जैसे ही हमने एपिसोड आज डिस्कस किया, हम लोग ने ऑफलाइन भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कुछ दिनों से, एंड टुडे वी हैव कम एंड एक्चुअली रिकॉर्डेड इट. मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने शुरुआत में बताया, और द कॉमन थॉट इज दैट there are so many variations and versions of our great epics, right? Ramayana and Mahabharata. There's so many people, there are so many interpretations, misinterpretations also, and we see that women in these two epics have always been in today's interpretations. आज के जो interpretations है, we see reels. आजकल वो ज़माना आ गया कि reels देख लो, scroll कर लो. उसमें they have shown that normally they have shown that these women whom we talked about, which generally nobody talks about, are always shown as weak background characters, and they are not like the types who can come forward and take a decision या कोई किसी को कुछ बोल सकें. They have always seen कि वो तो बेचारी गांधारी जो है वो पट्टी बांध के बेचारी बैठी हुई है. And like we talked about Sita Ma, where she's just blindly following her husband wherever he's going into the forest, and similarly about Kunti Ma, etc. We have talked about all those things. What is it that you would like to say, each of you, to the audience watching this, or how do you bust this myth that they were, if you would like to sum up this episode, how would you sum this up about women in ancient India, especially in our epics? That what's the message that they give us? What is the message that they give today to us? See, all the women, and I want to state it very, very categorically, all the women in the epics, महाभारत रामायण, और इनफैक्ट महाभारत में जो इवन छोटू छोटू कैरेक्टर्स हैं, चित्रांगदा, उलूपी, सत्यवती, सावित्री की जो कथा है, व्हाटएवर, ठीक है, वो so सब many. के सब आर, none of them are अबला स्त्री. कोई भी अबला नारी नहीं है. सभी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सभी सशक्त हैं, सभी अपने निर्णय भी स्वयं लेती हैं, सभी अपना मत भी व्यक्त करती हैं, पर साथ साथ वो अपना कर्तव्य भी नहीं भूलती. जो भी उनका रोल है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, ऑल ऑफ इट, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना कर्तव्य भी कभी नहीं छोड़ा. उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि उनमें कोई दुर्गुणी नहीं थे, जैसे हमने कैकेयी की बात करी, देयर आर शूर्पणखा, ऐसे तो है ना. अच्छा, the fact that these women could also do what they do they sound like abala naris to us? The fact that they are made out to be like that. The fact that Kaikeyi could change the direction of Ayodhya, is that a abala nari? Not at all. The fact that Shurpanakha incited her brother to destroy himself using whatever way she did, is that an abala nari? So none of them are abala naris, ठीक है. But problems, so ups and downs, तो सबकी लाइफ में होते हैं यार. Correct. If we say Sita ji went through a lot, didn't Sri Ram? Didn't Lakshman? Of course. We say Draupadi went through a lot, didn't Pandavas? Right? All of them did. So the whole prism
of looking at Mahabharata and Ramayana, segregating genders, segregating jatis, I think it's just completely flawed. Drop all these lenses, drop all the isms. If you want to take the right lessons from Mahabharata and Ramayana, study them, to learn from them कि भाई decisions कैसे लिए जाएं जिससे हम बाद में regret ना करें. Because एक बात तो पक्की है, जैसे निर्णय लोगे फल तो मिलेगा, सबको मिलेगा, कोई भी हो, जैसे निर्णय लोगे फल मिलेगा. सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि सारे ऑप्शंस जो आपके सामने है वो ठीक नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी इफ यू आर अ लीडर डिसीजन लेना पड़ेगा. Correct. और फिर भुगतना भी पड़ेगा. देयर इज नो रनिंग अवे. तो कैसे निर्णय लो विच इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, ये उससे सीखना है रादर देन लुकिंग एट इट फ्रॉम एनी प्रिज्म. एंड एज आई स्टेटेड इनिशियली इटसेल्फ, ऑल द women आर people we learn from, very strong, who managed both their rights and duties beautifully. That's very well summed up about rights and duties. Please, Vinit ji, what is your take? Completely agree with Ami ji, and also this fact that आपने जो बोला, ये जो स्त्रियां हैं जिनको अबला माना जाता है, the very fact कि हमारे शास्त्रों में अभी भी श्लोक हैं उनके लिए, पंचकन्या की प्रेयर्स के लिए श्लोक है, सतियों के लिए श्लोक है. So that shows the impact they have had over thousands of years. उनकी जो कहानियां हैं वो चाहे जिस भी फॉर्म में बताई गई, थोड़ा मॉडिफाइड बताई गई, they have left an impression. It's an indelible impression that has been left on the Indian psyche. कि हम अभी तक भूल नहीं पा रहे और हम अभी भी उनके बारे में बात कर रहे हैं. हजारों साल के बाद भी मंदोदरी रेलेवेंट है, कुंती रेलेवेंट है, शूर्पणखा रेलेवेंट है. और जो इनकी इंडिविजुअल स्टोरी, जैसे अमी जी ने कहा, हर एक स्टोरी से कुछ सीख है मिलती है हमें. बिल्कुल. और आप देखिए, पूरा जो हमारा वैदिक लिटरेचर है या जो सनातन धर्म में जो लिटरेचर है, उसका पर्पस ही ये है कि हमें सही रास्ता बताना, कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, आपको इस यूनिवर्स में बेस्ट वे क्या है आपका सर्वाइव करने का. आप रावण की तरह भी रह सकते हो, सबसे लड़ाई झगड़ा करके, उसमें आपका अंत क्या होगा वो भी ठीक है. आपको एक इनिशियल फेज मिलेगा, हाँ, प्रॉस्पेरिटी का, बट एंड आपका क्या हुआ. और आप राम की तरह भी जी सकते हो, आपने चाहे बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन एंड हजारों 11,000 साल वाल्मीकि रामायण में जैसे लिखा कि उन्होंने राज किया, बट आप वो भी भूल जाओ. आज भी हम राम को भगवान मानते हैं. बिल्कुल. तो वो जो यश है, वो जो कीर्ति है, वो आपके कर्मों के कारण आपको मिलेगी. आपने अपने जीवन में मटेरियल जो भी आपने सहूलियतें आपको मिली, या आपने जो भी भोगा, उसके बियॉन्ड क्या है. तो इनका आई थिंक कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इन सब स्त्रियों का, जिनके बारे में हमने आज बात की, और भी जो हैं स्त्रियां बहुत हैं, उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि आज भी वो हमें गाइड कर सकती हैं. सारे कैरेक्टर्स जो हैं, हर एक कैरेक्टर से हम सीख सकते हैं, और नॉट जस्ट फॉर आवर ओन lives, personal lives, at a professional level also, how to manage, how not to behave like Dashrath in an organization. Correct. Or how to behave like Krishna with an out of box thinking, or how to be like Draupadi, handle different responsibilities, correct, effectively. So imagine ऐसे सुभद्रा. सुभद्रा एक और जैसे है कैरेक्टर. अब सुभद्रा, आपको पता है, जब वो भगा के लेके जाते हैं उनको, अर्जुन जब भगा के लेके जाते हैं द्वारका से, सुभद्रा इज द वन हु इज ड्राइविंग द चैरियट. सुभद्रा रथ चला के लेके जा रही हैं. That's insane. Imagine, she wanted to run away with Arjun. So ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आजकल का जो so called feminism है, I think they have yet not reached that level of empowerment that women had at that time. So जैसा अमी जी ने भी पहले बोला कि empowerment is a different thing. Correct. You may be in whatever situation. It's a different concept. You may be in whatever situation. आपके जो circumstances हैं उससे तो आपको डील करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. चाहे आप कहीं फंसे हुए हो, चाहे आप अच्छी हालत में हो, पर the very fact कि आपके decisions, आपके कर्म come to a conclusion, or you can see them to a conclusion, and you can act on them. I think that itself shows that ये impact जो इनका, it's a continuous impact that we can still feel. I loved मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने इसका समेशन किया है ये एपिसोड का. एंड अनफॉर्चुनेटली वी कांट टॉक अबाउट ऑल द वुमेन बिकॉज देयर आर सो मेनी, then we can go on and on and on and on. But I loved the way you mentioned the key characters and क्या सीख मिल रही है हमको उनसे. And then you also brought in the feminists at the end. So I don't know where we are. But now
since both of you are here, we have something very interesting. We have a rapid fire round. अरे Which Oh. Suved is going to start. Okay. Suved is going to start that off, and he's just going to quickly ask you. We're going to alternately, आपसे हम एक एक करके सवाल पूछेंगे, and both of you can try and answer in one word. Okay. That's it. That's the whole purpose We of can this. try. So Suved, take it away. हमारी शास्त्रों की सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड महिला। Ahalya? अहल्या सीता किसके पास ज्यादा शक्ति थी, सीता या द्रौपदी? Tough. Very tough. We have to give one word, one Uh, answer. Draupadi. Okay. I would go with Draupadi also. Okay. एक चीज कुंती के बारे में that you wish more people knew। The way she treated her stepsons. The struggles she goes through but doesn't give up her duties. Gandhari, ideal wife or a tragic rebel? Hopeless romantic. Okay. Okay, that's fair Could enough. have been a better mother. Okay. Could have been. Okay. अगर सीता माँ अभी धरती पे होती तो वो आज की महिला को क्या आदेश देती? This can be one word. That's okay। You can give a sentence. Abhiji. Duty matters, but so does self-respect. Yeah, I think वो यही बोलती हैं कि speak your mind, do what you want to do. That's what she did. A modern book or film that completely misrepresents So many. epic women. So many. Oh man. By and large, I think One. all of them. By and large, all of them. All the serials. But which is your favorite one to bash? Tell The us that. Palace of Illusions. Okay. Because the kind of misconceptions Palace of Illusions has spread for Draupadi, Hmm. I think they are unforgivable. Hmm. Especially coming from somebody who calls herself a feminist author. Hmm. The way she has misrepresented Draupadi and converted her into some chipper, Hmm. unforgivable. Hmm. Hmm. What about you? Yeah, no, I think lot of them. ये सारे जितने नए fiction versions हैं जो apparently different perspectives Hmm. play out करते हैं. You can't twist it completely. You can't turn the story on its head Hmm. in trying to justify your perspective. Like certain historians also. So-called historians. One woman from the epics who deserves her own movie or series। वो मैं खांसी का रहा था ना। Sorry. One woman from the epics who deserves her own movie or series। Hmm. That's What an odd about- one. What about you? I would say all these big characters do. You have if to they pick have one। to. So, I would say Ahalya. अहिल्या, okay। हमारे दोनों एपिक्स से कौन सी महिला है who had the toughest moral dilemma, who faced the toughest moral dilemma? Again, difficult. Mm. Pick one. I mean, most of them did. Yeah, I most of understand them that. did. That's all right. But So who the do you think toughest- would have the toughest one? The one who went through the most in terms of being subjugated Hmm. due to ethical whatever compulsion of the society or whatever the way, I think that was Draupadi. Okay. So yeah, Draupadi of course, and then since we were discussing about Mandodari, maybe she also moral dilemma. Hmm. Mm. She knows what her husband is doing is not right, but still she's devoted to him, Hmm. and she's helpless. So Hmm. maybe. Hmm. Mm. All right. If you had to learn any one and only one life skill from any of the women in our epics, what would that life skill be? You can't say obey your husband, no? How to be a survivor. Hmm. I think that's the life skill. Okay, and you? Because he said it, I would go for something else then. I'll say, I think something which I had said before, problems will stay. Okay, problems will come and go. How do you hold your values? Hmm. Right, right, right। No, I think this has been a mind-blowing episode. I mean, like, जब हमने पहले सोचा, हम लोग envision कर रहे थे, बात कर रहे थे, आप लोग से भी, हम लोग सोच रहे थे कि, we have never done a podcast where we have had two guests. And while people call us odd because we have two hosts and one guest, this time we have an even thing, Even number. we've gone from odd to even now, and we've got two guests, but we were wondering कैसे होगा, क्या होगा, and I'm glad that in one shot we've just recorded without any breaks, and it has been so beautiful because I think both of you are genuinely very, very knowledgeable, and the flow that you all have maintained is fabulous.
So I hope that we have one more podcast with you all since आप लोग आए हो, or maybe more, and we'll figure that out. But हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार और जय श्री राम. नमस्ते, जय श्री राम. Thank you.